بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے درود السلام اللہم صلی وسلم علی نبینا حبیبنا محمد وآلہ وصحبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ویلکم کرتا ہوں آپ کو ایک حج کے ریلیٹڈ بہت ہی خوبصورت ویڈیو میں۔ میں ہوں محمد عمران، سعودی عربیہ سے۔ الحمدللہ سے حج کے حوالے سے بہت ہی خوبصورت ویڈیو میں نے پہلے بھی اپلوڈ کر چکا ہوں، تو آج کی ویڈیو جو ہے نا آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ تقریباً 4,500 سال پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پکار کے جواب میں لوگ دین و دنیا کی بھلائی اور رب کائنات کی خوشنودی حاصل کرنے دنیا کے کونے کونے سے مکہ معظمہ کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ حج اسلام کا 5واں رکن ہے اور ہر عاقل بالغ اور صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک بار فرض کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کا واحد حج 10 ہجری میں کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ کرام کے ساتھ ادا کیا، جسے حجۃ الوداع کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مناسک حج اور انتظامی امور سے آگاہی۔ حج قرآن اندازی میں کامیابی کے فوراً بعد عازمین حج کو چاہیے کہ وہ مناسک حج اور دیگر انتظامی امور سے آگاہی حاصل کرنے کے لیے وزارت مذہبی امور کے حاجی کیمپوں کے ذریعے ہونے والی تربیتی ورکشاپس کے ساتھ ساتھ تربیتی کتابچوں، حج دستاویزی فلم، ٹیلی ویژن، ریڈیو کے پروگراموں اور اپنے علاقوں میں موجود مستند علماء کرام سے رابطہ رکھیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بغیر تربیت اور علم کے آپ کا یہ مبارک سفر اپنے اور دوسروں کے لیے زحمت اور پریشانی کا باعث بن جائے۔ سفر حج کی تیاری۔ حج پر روانہ ہونے سے پہلے رقم یعنی کم از کم 2000 سعودی ریال کے انتظام کے علاوہ حاجی کیمپ سے سفری دستاویزات یعنی پاسپورٹ، ٹکٹ، شناختی لاکٹ وغیرہ بھی حاصل کر لیں۔ پاسپورٹ، ویزے اور ٹکٹ کی فوٹو کاپی بھی احتیاطاً اپنے ساتھ رکھیں۔ دیگر سامان ضرورت میں مردوں کے لیے 2 احرام، ایک احرام کی بیلٹ، مضبوط اور آرام دہ سینڈل اور چپل جس سے پاؤں کے اوپر ابھری ہوئی ہڈی ننگی رہے۔ خواتین کے لیے 2 عدد عبایا، بما اسکارف اور آرام دہ جوتے وغیرہ شامل ہیں۔ روزمرہ استعمال کے 4 جوڑے کپڑے اور عام جوتا۔ حرم میں جوتے رکھنے کے لیے ڈوری والا چھوٹا تھیلا، پانی کی بوتل، مسواک، برش اور پیسٹ، سوئی دھاگا، دھوپ سے بچاؤ کے لیے چھتری، دستی بیگ جس میں احرام، پاسپورٹ، ادویات وغیرہ رکھی جا سکیں، اضافی نظر کی اینک، سامان پر نام لکھنے کے لیے بڑا مارکر، باندھنے کے لیے رسی، بڑا سوٹ کیس یا بیگ جس کا وزن سامان سمیت کسی صورت 30 کلوگرام سے زیادہ نہ ہو، بصورت دیگر ایئر لائن کو اضافی کرایہ ادا کرنا پڑے گا۔ ممنوع اشیاء۔ سعودی عرب میں ہر قسم کی منشیات مثلا چرس، افیون، ہیروئن، شراب اور خواب آور ادویات لے جانا ممنوع ہے، اور اگر کسی کے سامان سے برآمد ہو جائے تو نہایت کڑی سزائیں یا سزائے موت دی جاتی ہے۔ لہٰذا عازمین حج کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ کسی کا دیا ہوا سامان ہرگز اپنے ہمراہ نہ لے کر جائیں اور اپنے سامان کو بھی تالا لگا کر اپنی نظروں کے سامنے حفاظت سے رکھیں۔ طبی معائنہ اور ویکسینیشن۔ متعلقہ حاجی کیمپ میں اپنا طبی معائنہ کروائیں، اور اگر آپ کچھ مخصوص ادویات مسلسل استعمال کر رہے ہیں تو ان کا اندراج علاج کی کتاب میں کروائیں اور اس کی مناسب تعداد حاجی کیمپ سے پیک کروا کر اپنے ہمراہ لازمی لے جائیں۔ پولیو ویکسین، گردن توڑ بخار اور نزلے سے بچاؤ کا ٹیکہ حج پر روانگی سے کم از کم 10 دن پہلے لگوا کر ویکسینیشن کارڈ میں اس کا اندراج لازمی کروائیں۔ یہ کارڈ سعودی عرب آمد کے موقع پر چیک کیا جا سکتا ہے۔ حج ایک مشکل اور جسمانی مشقت والی عبادت ہے، لہٰذا روزانہ کم از کم 5 کلومیٹر پیدل چلنے کی مشق کریں۔ عبادت میں یکسوئی کے لیے کم اور سادہ غذا کی عادت ڈالیں۔ شناخت۔ تمام عازمین حج اپنے سوٹ کیس اور دستی سامان پر شناخت کے لیے حاجی کیمپ سے ملنے والے اسٹیکر پر اپنا نام، پاسپورٹ، فون، بلڈنگ اور مکتب کے نمبر واضح انداز میں لکھ کر بیگ پر چپکائیں، اور بیگ کے اندر بھی کسی چٹ پر لکھ کر رکھیں تاکہ گمشدہ سامان ملنے کی صورت میں شعبہ گمشدگی و بازیابی آپ سے رابطہ کر سکے۔
तमाम मर्द अपने एहराम पर और खवातीन स्कार्फ पर शनाख्त के लिए पाकिस्तानी परचम का स्टिकर चस्पा करें, जो आज़मीन हज को हाजी कैंपों से मुफ्त मुहैया किया जाता है। खवातीन सऊदी अरब में क़याम के दौरान अबाया लाजमी पहने, कांच की चूड़ियां और ऊंची हील वाले जूते साथ लेकर मत जाएं। तमाम आज़मीन हज को हिदायत की जाती है कि अपने मकतब के कार्ड और शनाख्ती लॉकेट हर वक्त पहने रखें। ये आपके पासपोर्ट का नेमुल बदल है। रास्ता भूलने की सूरत में मुआविनीन हुज्जाज उनकी मदद से आपकी दुरुस्त रहनुमाई कर सकेंगे। एहराम बांधने से पहले, एहराम बांधने से कबल नाखून तराशना, गैर जरूरी बाल साफ करना और गुस्ल करना सुन्नत है। मुमकिन हो तो बदन पर खुशबू लगाएं। मर्दों का एहराम सिर्फ 2 अनसिली सादा चादरें हैं। एक तहबंद की तरह नाप से ऊपर बांध लें। मजबूती के लिए बेल्ट भी बांध लें और दूसरी चादर ऊपर ओढ़ लें। खवातीन का एहराम आम लिबास के ऊपर अबाया और स्कार्फ है, जिससे सर के बाल भी ढके हुए हों। सिर्फ हाथ और चेहरा खुला होना चाहिए। अगर मकरूह वक्त न हो तो 2 रकअत नफल बराए एहराम अदा करें और उम्रे की नियत यानी लब्बैक उम्रा पढ़कर खवातीन धीमी आवाज में जबकि मर्द ऊंची आवाज में 3 बार तलबिया पुकारें। तलबिया पुकारने के साथ ही एहराम की पाबंदियां आप पर लाजिम हो जाएंगी। मसलन शिकार करना या उसमें मदद करना, दरख्त, घास, पौधे काटना, जूं वगैरह मारना, नाखून या जिस्म के बाल काटना, खुशबू का इस्तेमाल, अज़दवाजी ताल्लुकात, मर्दों के लिए सिला हुआ कपड़ा और टोपी वगैरह पहनना, बंद जूते, मोजे पहनना वगैरह। ये सब काम हालत एहराम में ममनू हैं। इनकी खिलाफवर्जी गुनाह है और कफ़ारे के लिए बाज़ सूरतों में बुदना, दम या सदका अदा करना वाजिब होता है। घर से एयरपोर्ट के लिए रवानगी। आज़मीन हज वजारत मजहबी उमूर की हिदायत के मुताबिक या अपनी परवाज की रवानगी से कम 6 घंटे कबल अपने घर से बराह रास्त एयरपोर्ट पहुंचेंगे। जो आज़मीन हज अपने मुताल्लिका हाजी कैंप में मुकीम हों, उनके लिए एयरपोर्ट जाने के लिए बसों का इंतजाम होगा। अगरचे एयरपोर्ट के लाउंज में एहराम बांधने की सहूलत मौजूद होती है, ताहम रश से बचने के लिए जिद्दा रवाना होने वाले आज़मीन हज को हिदायत की जाती है कि वो अपने घरों या हाजी कैंपों से ही एहराम बांधकर एयरपोर्ट पहुंचें। ताहम एहराम की नियत और 2 नफल घर या एयरपोर्ट जहां आसानी मुयस्सर हो पढ़ लें। बराह रास्त मदीना मुनव्वरा परवाज वाले आज़मीन हज सादा कपड़ों में ही एयरपोर्ट पहुंचेंगे और मदीना क़याम के बाद मक्का मुकर्रमा रवानगी के वक्त एहराम बांधेंगे। प्राइवेट स्कीम के आज़मीन हज अपने वीजा लगे पासपोर्ट और टिकट अपने हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर से हासिल करके उसकी हिदायत के मुताबिक अमल करें। अपने हज पैकेज के मुआहदे की कॉपी लाजमी साथ रखें ताकि उसे इनहराफ की सूरत में ग्रुप ऑर्गेनाइजर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके। सामान की बुकिंग और बोर्डिंग कार्ड का हुसूल। एयरपोर्ट की इमारत में दाखिल होने के बाद कस्टम हुक्काम आपका सामान चेक करेंगे। चेकिंग से फारिग होने के बाद अपनी मुताल्लिका परवाज के काउंटर पर अपना सामान जमा करवाकर सामान का टैग और बोर्डिंग कार्ड हासिल कर लें और इस बात को यकीनी बनाएं कि आपने हाजी कैंप से मिलने वाले स्टिकर को बैग पर अच्छी तरह से चस्पा कर दिया है और एयरलाइन के अमले ने आपके सामान पर टैग भी लगा दिया है। अब आप अपने दस्ती सामान के हमरा इमिग्रेशन काउंटर से गुजरकर मुसाफिरों की इंतजारगाह में पहुंच जाएंगे। अगर अभी तक एहराम की नियत नहीं की तो यहाँ मौजूद मस्जिद में 2 नवाफिल अदा करके एहराम की नियत कर लें, क्योंकि जहाज में वजू करना या एहराम तब्दील करना इंतहाई मुश्किल अम्र है। जब जहाज में जाने का ऐलान हो तो कतार बनाकर जहाज की जानिब रवाना हो। जहाज में अपनी सीट के ऊपर मौजूद खाने में अपना दस्ती बैग रखकर इत्मीनान से बैठें और अमले की हिदायत को गौर से सुनें और उसके मुताबिक अमल करें। दौरान परवाज जिक्र, अज़कार और तलबिया पुकारते रहें। जिद्दा या मदीना मुनव्वरा एयरपोर्ट। जिद्दा या मदीना मुनव्वरा एयरपोर्ट पर लैंड करते ही सबसे पहले आपका वास्ता सऊदी इमिग्रेशन हुकाम से पड़ेगा, जो आपके पासपोर्ट चेक करने के बाद दाखिले की मुहर लगाएंगे। यहाँ काफी वक्त सर्फ हो सकता है।
इमिग्रेशन से फारिग होकर मखसूस रास्तों से होते हुए आप एक बड़े हॉल में पहुंचेंगे। सऊदी हुक्काम की रहनुमाई में यहीं से आपको अपना सामान मिलेगा, जो आपकी आमद के साथ ही कन्वेयर बेल्ट के जरिए उस हॉल के बैरूनी हिस्से में पहुंचा दिया जाता है। अपना सामान वसूल करने के बाद आपको सऊदी कस्टम्स के अमले से वास्ता पड़ेगा। सामान की चेकिंग के दौरान कस्टम्स के अमले को मुतमईन किए बगैर कोई भी मुसाफिर एयरपोर्ट से बाहर नहीं जा सकता। जहाँ खाली जगह नजर आ रही है आप लोग बैठते जाएंगे। हाजी साहब साइड पे हो जाए, साइड पे। गुजारिश है कि आपका सामान आ गया, सामान चेक कर लें। अगर आपका सामान आ गया तो उठाकर अपने पास रख लें, अपना सामान पूरा कर लें। इस हॉल से बाहर निकलने पर सब्ज पाकिस्तानी परचम थामे दफ्तर उमूर हुज्जाज पाकिस्तान का अमला आपको खुशामदीद कहेगा और आपको बसों की इंतजार गाह तक पहुंचाएगा। तमाम बसें परवाज, मकतब और बिल्डिंग की तरतीब के लिहाज से रवाना होंगी, लिहाजा अपनी बारी का इंतजार करें और इन तमाम मराहिल को सब्र व तहम्मुल और खंदा पेशानी से तय करें। कतार बनाकर बसों में सवार हों और इस बात का इत्मीनान कर लें कि आपका तमाम सामान भी उसी बस में लोड कर दिया गया है। बसों में सवार होते वक्त हमेशा खवातीन और बुजुर्ग आज़मीन हज को तरजीह दें। रिहाइश गाहें। सऊदी तालीमात के मुताबिक खवातीन और मर्दों को अलहदा-अलहदा कमरों की अलॉटमेंट ग्रुपों की बुनियाद पर पाकिस्तान से ही कर दी जाती है, जिसकी तब्दीली सऊदी अरब में नामुमकिन है। रिहाइश गाहों पर मौजूद मुआविनीन आपकी मुख्तस रिहाइश पर पहुंचाने में आपकी मदद करेंगे। मुनासिब होगा कि अपने कमरे में सामान रखने के बाद हरम की तरफ रवाना होने से पहले कुछ देर आराम कर लें, वरना थकावट की वजह से इबादत का लुत्फ नहीं आएगा। हरम की तरफ रवाना होने से कबल अपने गले के लॉकेट और मकतब के कार्ड जरूर अपने हमराह रखें, जबकि अपनी बिल्डिंग और इलाके का नाम, पता, फोन नंबर लिखकर अपने पास भी रख लें। हरम में दाखिल होते वक्त गेट का नाम और नंबर याद रखें। पहला उम्रा। उम्रे के 2 फराइज हैं। उम्रे की नीयत से एहराम बांधकर तलबिया पुकारना और तवाफ करना, यानी बैतुल्लाह के गिर्द 7 चक्कर लगाना। उम्रे के 2 वाजिबात हैं, सफा और मरवा की सई करना और हल्क या कसर करना। सुन्नत के मुताबिक हरम पाक में दाखिल हों और खाना काबा पर पहली नजर पड़ते ही हाथ उठाकर खूब दुआएं मांगें, क्योंकि ये दुआओं की कबूलियत का खास मौका है। उसके बाद हजर अस्वद की सीध में आए, जिसकी निशानदही सब्ज ट्यूबलाइट के जरिए भी की गई है। यहां तलबिया पुकारना बंद कर दें। मर्द एहराम के ऊपर वाली चादर सीधे हाथ की बगल से निकालकर बाएं कांधे पर डाल दें, यूं उनका दायां कंधा खुला हो जाएगा। इसे इस्तिबा कहा जाता है। यहां खड़े होकर खाने काबा की तरफ मुंह करके तवाफ की नियत करें। ए अल्लाह, मैं आपकी रजा के लिए उम्रे के तवाफ की नियत करता या करती हूँ, इसे मेरे लिए आसान फरमा दीजिए और कबूल फरमा लीजिए। इसके बाद बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहते हुए हजर अस्वद की तरफ हथेलियां करके चूम लें। इसे हजर अस्वद का इस्तिलाम कहा जाता है। इसके बाद तवाफ शुरू कर दें और दौराने तवाफ मसनून दुआएं ज़बानी या देख कर पढ़ें। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। ये दुआ रुकने यमानी और हजर अस्वद के दरमियान पढ़ना सुन्नत है। नियत तवाफ या दीगर मकामात पर पढ़ी जाने वाली दुआओं के अरबी अल्फाज अगर याद ना हो तो जो भी दिल में आए मांगे, जिस ज़बान में जी चाहे मांगे।
آپ کو خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر پورے کرنے ہیں اور ہر چکر کے بعد استلام کرنا ہے۔ مرد صرف پہلے 3 چکروں میں سینہ تان کر تیز تیز چلیں گے جسے رمل کہا جاتا ہے، تاہم بھیڑ کی صورت میں تیز چلنا ضروری نہیں۔ طواف کے بعد 2 رکعت نماز واجب الطواف مقام ابراہیم کی سیدھ میں ادا کریں گے۔ اگر یہاں موقع نہ ملے تو یہ حرم میں کہیں بھی ادا کیے جا سکتے ہیں۔ مطاف کے چاروں طرف ٹھنڈے اور سادہ زمزم کی ٹوٹیاں اور کولر لگے ہوئے ہیں۔ قبلہ رخ کھڑے ہو کر جی بھر کر زمزم پئیں اور خوب دعائیں مانگیں۔ زمزم پینے کے بعد صفا پہاڑی کی طرف سعی کے لیے روانہ ہو جائیں، جس کی نشاندہی کے لیے عربی اور اردو میں بورڈ لگے ہوئے ہیں۔ صفا کی طرف جاتے ہوئے حجر اسود کا استلام کرنا سنت ہے۔ صفا و مروہ کی سعی۔ صفا پہنچ کر آپ سعی کی نیت کریں اور مروہ کی طرف چلیں۔ راستے میں جہاں سبز لائٹ شروع ہو تو وہاں سے مرد اس وقت تک بھاگیں جب تک سبز لائٹ ختم نہ ہو جائے، تاہم خواتین اپنی معمول کی رفتار سے چلیں۔ مروہ پہنچ کر آپ کا 1 چکر مکمل ہو جائے گا۔ یہاں قبلہ رو ہو کر خوب دعائیں مانگنے کے بعد دوبارہ صفا کی طرف روانہ ہوں۔ سبز لائٹوں کے درمیان بھاگ کر اور باقی مقام سے معمول کی رفتار سے چل کر آپ دوبارہ صفا پہنچ جائیں گے۔ اس طرح آپ کے 2 چکر مکمل ہو جائیں گے۔ اسی طرح 7 چکروں کے بعد آپ کی سعی مروہ پر مکمل ہوگی۔ حلق یا قصر۔ سعی کے بعد مرد حضرات حلق یعنی سر کے بال منڈوا کر یا قصر کروا کر حالت احرام سے باہر آئیں گے۔ عورتیں قصر یعنی ساری چٹیاں پکڑ کر سر کے دائیں بائیں اور پیچھے 3 حصے کر کے ہر حصے سے انگلی کی 1 پور کے برابر یا کچھ زیادہ بال کاٹ کر حالت احرام سے باہر آ جائیں گی اور یوں آپ کا عمرہ مکمل ہو جائے گا۔ سفری سہولتیں۔ سرکاری حج اسکیم کے تحت آئے ہوئے حجاج کی رہائش گاہیں مکہ مکرمہ میں عزیزیہ نامی بستی میں ہوں گی، جو حرم پاک سے تقریباً 8 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ بلڈنگ کے باہر حرم آنے جانے کے لیے جدید ایئر کنڈیشن بسیں 24 گھنٹے وہاں موجود ہوں گی۔ اگر آپ چاہیں تو 5 نمازیں حرم میں ادا کر سکتے ہیں۔ آپ کی رہائش گاہ بس اسٹاپ اور حرم کے پاس پاکستانی معاونین آپ کی رہنمائی کے لیے ہر وقت موجود ہوتے ہیں۔ حج سے پہلے حرم میں بہت زیادہ رش کے باعث سعودی حکومت 5 تا 15 ذوالحج تمام بسوں کی آمد و رفت بند کر دیتی ہے، لہٰذا ان دنوں میں حرم جانے، دیگر زیارات یا غیر ضروری سفر سے پرہیز کریں اور نماز اپنے علاقے کی قریبی مسجد میں ادا کریں۔ خصوصاً آخری نماز جمعہ کے لیے خواتین اور بچے حرم پاک جانے سے گریز کریں۔ مدینہ منورہ کی حاضری۔ مدینہ منورہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری حج کا رکن تو نہیں، لیکن عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ سفر بہت بڑی سعادت ہے۔ سرکاری اسکیم کے عازمین حج مدینہ منورہ روانگی کے شیڈول کے بارے میں معاونین حجاج کے ذریعے دفتر مدینہ روانگی سے آگاہی حاصل کریں اور اس پر سختی سے عمل کریں۔ جو حجاج حج سے پہلے مدینہ منورہ نہیں گئے تھے وہ اپنی پاکستان روانگی سے تقریباً 10 دن قبل روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری اور دیگر زیارات کے لیے مدینہ منورہ روانہ کر دیے جاتے ہیں۔ مدینہ منورہ پہنچ کر غسل کے بعد بہترین کپڑے زیب تن کر کے درود پاک کا ورد کرتے ہوئے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جائیں اور 2 رکعت نماز نفل شکرانہ کے بعد باب السلام کے راستے روضہ رسول پر حاضری دیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 جہانوں کے سردار کے دربار میں حاضری کی توفیق بخشی۔
مدینہ منورہ اور خصوصاً مسجد نبوی میں آداب حاضری کا خاص خیال رکھیں۔ ریاض الجنہ جس کی نشاندہی سبز قالینوں کے ذریعے کی گئی ہے میں نوافل اور دعا کا خصوصی اہتمام کریں۔ مدینہ منورہ کی دیگر زیارات میں جنت البقیع، مسجد قباء، مسجد قبلتین، مسجد جمعہ، مسجد غمامہ، غزوہ احد اور خندق کے مقامات وغیرہ شامل ہیں۔ بہتر ہے کھجور اور دوسری اشیاء کی خریداری مدینہ منورہ سے کر لیں، تاہم حجاز مقدس میں اپنے قیام کو قیمتی بنائیں اور بازاروں اور مارکیٹوں میں زیادہ وقت گزارنے سے پرہیز کریں۔ اگر سامان وزن کی مقررہ حد سے زائد ہو گیا تو ایئر لائن کو اضافی کرایہ ادا کرنا پڑے گا۔ مشترکہ رہائش، صفائی اور کھانا۔ سرکاری اسکیم کے حجاج مشترکہ رہائش گاہوں میں قیام کریں گے، جہاں غسل خانے، کچن اور واشنگ مشینیں بھی مشترکہ ہوں گی۔ تمام سرکاری حجاج کو کھانا ان کی رہائش گاہوں پر ہی فراہم کیا جائے گا۔ اس مقصد کے لیے مقررہ وقت پر ڈائننگ ہال میں آئیں اور یہیں کھانا تناول فرمائیں۔ کمروں میں کھانا لے کر جانا منع ہے۔ اپنے حصے سے زیادہ کھانا نہ لیں۔ دوسرے عازمین حج کے حقوق کا خیال رکھیں۔ اپنے کمروں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ کھانے کا ذائقہ اکثریت کے معیار کو مد نظر رکھ کر بنایا جاتا ہے، تاہم انفرادی سطح کی پسند ناپسند پر صبر و تحمل سے کام لیں اور معاونین حجاج سے تعاون کریں۔ سعودی عرب میں بیشتر رہائش گاہوں میں مغربی طرز کے واش رومز اور کموڈ نصب ہیں۔ عازمین حج سے گزارش ہے کہ کموڈ کا درست استعمال سیکھ کر جائیں تاکہ کسی قسم کے نقصان یا ناپاکی کا اندیشہ نہ ہو۔ صفائی کا خاص خیال رکھیں اور دوسرے عازمین حج کے لیے زحمت کا باعث نہ بنیں۔ طبی سہولیات۔ آب و ہوا کی تبدیلی، انفیکشن یا بخار، نزلہ، گلے کی خرابی اور بعض اوقات شدید تھکن کی وجہ سے جسمانی درد کی شکایت ہو سکتی ہے۔ ایسی صورت میں وزارت مذہبی امور اور دفتر امور حجاج پاکستان نے آپ کی رہائش گاہوں کے قریب ڈسپنسریاں قائم کی ہیں، جہاں پاکستانی ڈاکٹر اور پیرامیڈیکل سٹاف آپ کی خدمت کے لیے 24 گھنٹے موجود ہے۔ اس کے علاوہ مکہ اور مدینہ منورہ میں ایک بڑا اسپتال بھی قائم کیا جاتا ہے، جہاں ایکس رے اور ٹیسٹوں کی تمام سہولیات حجاج کرام کو مفت مہیا کی جاتی ہیں۔ ضرورت کے تحت ایمبولینس سروس بھی مفت مہیا کی جاتی ہے۔ سعودی قوانین کی پاسداری۔ سعودی عرب میں قوانین انتہائی سخت ہیں۔ خدا نخواستہ اگر کوئی حاجی قانون کی خلاف ورزی پر پکڑا گیا تو حکومت پاکستان اور پاکستان حج مشن اس میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ سعودی قوانین کا احترام کیا جائے اور سعودی اہلکاروں کی ہدایات پر سختی سے عمل کریں۔ کوئی بھی گری پڑی چیز ہرگز نہ اٹھائیں، کیونکہ یہاں زمین پر گری ہوئی چیز اٹھانے کا مطلب چوری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سزا کے ساتھ ساتھ خدا نخواستہ حج سے بھی محروم ہو جائیں۔ یہاں عورتوں کے اکیلے پھرنے کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا، اس لیے اگر عورتوں کو باہر جانا ہو تو ضروری ہے کہ سعودی رسم و رواج کے مطابق اپنے محرم کے ساتھ اور عبایا اوڑھ کر ہی باہر نکلیں۔ حرم میں اونچی آواز میں باتیں اور موبائل فون کا بیجا استعمال نہ کریں۔ حرم پاک کے تقدس کے پیش نظر موبائل سے تصاویر یا سیلفی بنانے کی سخت ممانعت ہے۔ دفتر امور حجاج پاکستان۔ حجاج کی سہولت کے لیے وزارت مذہبی امور کے زیر انتظام سعودی عرب میں قائم دفتر امور حجاج میں بہت سے شعبے کام کرتے ہیں۔ ان میں مرکزی انتظامی دفتر MCO، 24 گھنٹے مفت ہیلپ لائن، شعبہ شکایات، دفتر مدینہ روانگی، شعبہ گمشدگی و بازیابی، شعبہ رہائش، ٹرانسپورٹ و خوراک، شعبہ امراض و اموات، شعبہ مانیٹرنگ اور IT شامل ہیں۔ حجاج کرام کی فوری رہنمائی کے لیے ان کی رہائش گاہ پر بھی معاونین حجاج تعینات ہوتے ہیں، جبکہ ہر رہائشی سیکٹر میں ایک سیکٹر آفس کام کرتا ہے۔ قیام کے دوران ہمیشہ اپنے گروپ کے ساتھ رہیں اور گم ہو جانے کی صورت میں اپنے موبائل فون، حرم گائیڈز یا معاونین حجاج کے ذریعے مدد حاصل کریں۔ حج کی تیاری اور روانگی کے لیے اہم ہدایات۔ اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لیں۔
क्योंकि अब हज का मुश्किल तरीन मरहला शुरू होने जा रहा है। अब तक आपने सऊदी अरब में जो वक्त गुजारा है वो यकीनन वजारत मजहबी उमूर के हुस्न इंतजाम की वजह से बगैर किसी परेशानी और मुश्किल के गुजारा होगा। अब आप मशाइर मुक़द्दसा के लिए रवाना होंगे, जहां दुनिया भर से आए हुए लाखों आज़मीन हज एक जगह पर जमा होंगे और उनको मौसम की शिद्दत का सामना करना पड़ेगा। अब तक हमें लग रहा है कि हम बआसानी पैदल चल सकते हैं, क्योंकि बस आपको हरम के बिल्कुल करीब उतारती थी और बस स्टॉप से हरम पैदल जाना कोई सफर महसूस नहीं होता था। अब अगले 5 दिन आपके पास आराम के लिए बिल्कुल वक्त नहीं होगा। मिना और अरफात के मकातिब के नक्शे आपको अपनी बिल्डिंग से मिल जाते हैं। ये नक्शे मशाइर में भी जगह जगह नस्ब किए गए हैं। वजारत ने मकतब और बिल्डिंग की तलाश के लिए स्मार्टफोन्स की मोबाइल ऐप पाक हज मुआविन भी तैयार की है। उनसे खुद भी आगाही हासिल करें और साथ ही हुज्जाज की भी मदद करें। मुक़द्दस मकामात यानी हरम, मिना, मुज़दलिफ़ा और अरफात की सफाई का खास ख्याल रखें। खाली बोतलें, रैपर और कूड़ा करकट रास्तों में फेंकने के बजाय मखसूस कूड़ादान में डालें। हज के 5 दिन की मुनासबत से अपने साथ कम से कम सामान रखें जो कि कंधे पर लटकाने वाले बैग में बआसानी आ जाए। मसलन एहराम की इजाफी चादर, एक जोड़ा कपड़े और जूता, मिसवाक, फोन चार्जर, मुज़दलिफ़ा के लिए मैट, छोटा तकिया वगैरह। आप अपनी एयर कंडीशन रहायशों से निकलकर मिना की खेमा बस्ती और मैदान अरफात मुंतकिल होंगे, जहां शदीद गर्मी के मौसम में हजारों बसों के चलने की वजह से दिन के औकात में रूम कूलर्स के बावजूद गर्मी और हब्स बहुत बढ़ जाता है। मिना और अरफात में महदूद जगह के बायस आपको नरमो गुदास बिस्तरों के बजाय जमीन पर बिछे 1.5 से 2 फुट चौड़ाई वाले मैट्रेस पर वक्त गुजारना होगा। इसके लिए ज़हनी तौर पर खुद को तैयार रखें। दूसरे हुज्जाज के साथ खंदा पेशानी के साथ पेश आएं। अय्याम हज में शदीद रश के बायस खाना मुश्किल से और ताखीर से मिलने का अंदेशा होता है। नीज खाने के जायके में भी फर्क आ सकता है। सब्र का दामन हाथ से न छोड़ें और एहतियातन खुश्क खुराक मसलन निम्को, बिस्किट, छोटे केक, चने, जूस और पानी वगैरह अपने साथ रखें। वजू और रफ़ा हाजत की जगहों पर हुज्जाज का शदीद रश होता है। साथ ही हुज्जाज की आसानी के लिए उन जगहों पर सफाई और पाकीज़गी का खास ख्याल रखें। पानी का गैर जरूरी इस्तेमाल न करें। अय्याम हज में अपनी खुराक कम से कम रखें ताकि ज्यादा से ज्यादा वक्त इबादत में गुजरे। हज के फराइज और वाजिबात। हज के 3 फराइज हैं। किसी एक के छूट जाने से हज नहीं होगा। हज की नीयत से एहराम बांधकर तलबिया पुकारना। 9 जुल्हज को वकूफ अरफात और तवाफ ज़ियारत। हज के 6 वाजिबात हैं कि किसी वाजिब के रह जाने पर दम देने से तलाफी हो जाएगी। वकूफ मुज़दलिफ़ा, रमी, कुर्बानी, हल्क या कसर, सई, तवाफ विदा। मिना रवानगी। हज 5 दिनों का होता है जो 8 जुल्हज से शुरू होकर 12 जुल्हज को खत्म हो जाता है। 8 जुल्हज या 7 की रात को आप अपनी रिहाइश से एहराम बांधने के साथ हज की नीयत लब्बैका हज्जन के अल्फाज अदा करके मिना की तरफ रवाना होंगे। मकतब के जिम्मेदार रवानगी से कबल आज़मीन हज को मिना कार्ड भी देंगे जिस पर खैमा नंबर, मकतब और दूसरी मालूमात दर्ज होती हैं। दौराने हज इस लॉकेट को पहन कर रखना इंतहाई जरूरी है। रिहाइश गाह से मिना रवानगी के लिए आपका मकतब बसों का इंतजाम करता है। आज़मीन हज को बसों पर मुकर्ररा वक्त से काफी पहले भी सवार कराया जा सकता है और सड़कों पर शदीद रश के बायस तवील इंतजार की जहमत भी उठानी पड़ सकती है। अजीजिया की रिहाइश गाह से मिना का फासला 2 से 4 किलोमीटर बनता है। हुज्जाज ग्रुप की शक्ल में 1 से 1.5 घंटे में बआसानी पैदल भी मिना पहुंच सकते हैं।
मिना। 8 जुल्हज को आप मिना में ज़ुहर, असर, मगरिब और इशा की नमाजें अदा करेंगे। सिर्फ हज के दिनों में आबाद होने वाला खैमों का शहर मिना 100 से ज़ायद मकातिब में तकसीम है। मिना से मुत्तसिल हरम की जानिब जमरात यानी 3 अलामती शैतान वाक़े हैं। मिना से मस्जिद हराम तक मखसूस सुरंगों के जरिए पैदल रास्ता 6 से 8 किलोमीटर बनता है। हज के दिनों में प्राइवेट गाड़ियों के महंगे किराए और सड़कों पर शदीद रश के बायस मिना से हरम जाने आने के लिए ये रास्ता सबसे मुनासिब है। मिना की दूसरी जानिब मुज़दलिफ़ा और मैदान अरफात वाक़े हैं, जो बितरतीब तकरीबन 4 और 14 किलोमीटर दूरी पर हैं। रात मिना में ही क़याम होगा। 9 जुल्हज की फज्र मिना में अदा करके तुलुए आफ्ताब के बाद अरफात की तरफ रवानगी होगी। मशाइर में आमद और रफ्त के तरीक़े। मिना, मुज़दलिफ़ा और अरफात के दरमियान एक जदीद और तेज रफ्तार मशाइर ट्रेन चलती है, लेकिन उसकी कुल गुंजाइश 3 लाख हुज्जाज तक महदूद है। नीज़ सऊदी तालीमात के मुताबिक ट्रेन टिकट सिर्फ स्टेशन के नजदीकी मकातिब को मिलता है। ट्रेन के जरिए जाने वाले आज़मीन हज के लिए 3 स्टेशन बनाए गए हैं। ट्रेन टिकट के मुताबिक अपने मखसूस स्टेशन से ही सवार हों। ज्यादातर हुज्जाज बसों के जरिए या पैदल सफर करते हैं। बसों की रवानगी में ताख़ीर हो सकती है। इस मौके पर निहायत सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। बहुत ज़ईफ और माजूर अफराद पाकिस्तान से ही व्हील चेयर का बंदोबस्त कर लें और कम रश वाले औकात या मुतबादिल जगहों यानी तवाफ, सई और रमी के लिए ऊपरी मंजिलों का इंतखाब करें। मशाइर ट्रेन पर सवार होने के लिए मखसूस लिफ्टों का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर मुफ्त हेल्पलाइन, मुआविनीन हुज्जाज या मकतब के नुमाइंदों से रहनुमाई हासिल करें। याद रखें, मशाइर ट्रेन के स्टेशन की तरफ जाने वाले रास्तों पर उमूमन बहुत ज्यादा रश होता है और ट्रेन पर सवार होने और उतरने के लिए काफी वक्त लग जाता है। अपने साथ पानी और छतरी लाजमी रखें। औरतों और ज़ईफों का खास ख्याल रखें और सवार होते वक्त उन्हें तरजीह दें। किसी भी हंगामी हालत में घबराहट का शिकार होने के बजाय आहिस्ता आहिस्ता मुतासरा जगह से दूर हो जाएं। मदद के लिए गले के लॉकेट पर दिए गए इमरजेंसी फोन नंबर्स पर राब्ता करें। किसी भी सूरत में धक्कम पेल न करें, क्योंकि ऐसा करने से किसी कमजोर या ज़ईफ की जान भी जा सकती है। दूसरे आज़मीन हज का ख्याल रखें। याद रहे कि किसी मुसलमान की इज्जत और हुर्मत को अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबतुल्लाह की हुर्मत से बरतर करार दिया है। वकूफ़े अरफात। 9 जुल्हज का वकूफ़े अरफा हज का रुकन आज़म है। अगर ये रह जाए तो हज नहीं होता। ताहम गुरूब आफ्ताब से पहले पहले मैदान अरफात में पहुंचने वाले का वकूफ हो जाता है। मस्जिद निमरा में मौजूद हुज्जाज खुतबा हज सुनने के बाद ज़ुहर और असर की नमाजें इमाम के पीछे इकट्ठी अदा करते हैं। शदीद रश के बाइस ज्यादातर हुज्जाज मस्जिद निमरा नहीं पहुंच पाते और अपने खैमों में ही बाजमात नमाज अदा करते और फरागत के बाद अपने रब के हुजूर मगरिब के वक्त तक मनाजात करते हैं। ये दिन गुनाहों और खताओं की माफ़ी का दिन है। साथ ही साथ ये हश्र के मैदान में अल्लाह के सामने हाजिरी की याद दिलाने का जरिया भी है। गुरूब आफ्ताब मुकम्मल होते ही तमाम हुज्जाज नमाज मगरिब पढ़े बगैर मुज़दलिफ़ा की तरफ रवाना हो जाते हैं। याद रखें कि मैदान अरफात से वापसी पर शदीद रश और ख़ास तौर पर औरतों, ज़ईफ़ों और माज़ूरों की हिफाजत के पेश नज़र मुख्तलिफ मकातिब के हुज्जाज की नक़्ल हरकत के लिए औक़ात और तरीक़ेकार पहले से तय कर लिए जाते हैं। हुज्जाज के लिए लाजिम है कि वो अपने ग्रुप के साथ और मकतब के नुमाइंदों की हिदायत के मुताबिक दिए गए वक्त पर बस या ट्रेन के जरिए मुज़दलिफ़ा रवाना हो जाएं। रश की वजह से ये फासला 3 से 5 घंटों में तय होता है। इस मौके पर सब्र तहम्मुल और ईसार कुर्बानी से काम लें। अरफात से मुज़दलिफ़ा का पैदल सफर बाआसानी 3 घंटे में तय किया जा सकता है। वकूफ़े मुज़दलिफ़ा।
मुजदलिफा पहुंचकर हुज्जाज मगरिब और इशा की नमाजें इकट्ठी अदा करने के बाद शैतानों को मारने के लिए कम से कम 70 अदद कंकरियां इकट्ठी करते हैं। याद रहे कि मुजदलिफा की रात मुश्किल और दुश्वार होती है। उस दौरान सख्त गर्मी, बेआरामी और सफर की सोबतों के पेश नजर बाज़ हुज्जाज के लहजे में तलखी का उन्सर गालिब आ जाता है। यही आजमाइश की घड़ी है। अपने रवैये में शाइस्तगी बरकरार रखें, बेजा शिकवे शिकायत से गुरेज करें और एक दूसरे को बुरा भला ना कहें, सरफे नजर करें। अगला दिन भी निहायत मशक्कत तलब होगा, इसलिए मौका मिलने पर जरूर आराम कर लें। हुज्जाज 10 जुल्हज की सुबह नमाज फज्र अदा करने के बाद फिर दुआओं में मशगूल हो जाते हैं और वकूफ़े मुज़दलिफ़ा मुकम्मल करके तुलुए आफ्ताब के बाद पैदल, बसों या ट्रेन के जरिए मिना की तरफ कूच करते हैं। मुज़दलिफ़ा से मिना का फासला 4 किलोमीटर है। मिना पहुंचने के बाद फालतू सामान रखने या आराम की गरज से आप अपने खेमों में जा सकते हैं। रमी जमरात। 10 जुल्हज को हुज्जाज ने सिर्फ बड़े शैतान को 7 अदद कंकरियां मारनी हैं। आमतौर पर हुज्जाज ज़वाल के बाद या ज़ोहर की नमाज के बाद कंकरियां मारने के लिए रवाना होते हैं, लेकिन रश के पेश नज़र पहले भी रवाना हो सकते हैं। ज़ईफ मर्दों ख़वातीन की तरफ से उनके वकील भी कंकरियां मार सकते हैं। हुज्जाज को चाहिए कि जमरात की तरफ जाने वाले रास्तों से आगाही हासिल करें। सिर्फ मकतब के मुकर्रर करदा वक्त पर और ग्रुप के साथ रवाना हो। गुम हो जाने की सूरत में रास्तों पर तैनात सब्ज स्कार्फ और पाकिस्तानी परचम थामे मुआविनीन हुज्जाज या रजाकारों से रहनुमाई हासिल करें। कुर्बानी, हल्क, कस्र। कंकरियां मारने के बाद हुज्जाज सुन्नत इब्राहिमी के तहत कुर्बानी करते हैं। लाखों हुज्जाज के लिए कुर्बानी खुद करना या कुर्बान गाह तक जाना बहुत दुश्वार होता है। जो हुज्जाज अपने हाथ से सऊदी महकमों के जरिए कुर्बानी के पैसे जमा करवाना चाहें, उनकी सहूलत के लिए हरम के नजदीक कुर्बानी के कूपन हासिल करने के लिए जगह जगह बूथ भी कायम हैं। किसी भी अनजान शख्स को कुर्बानी के लिए पैसे मत दें। बेहतर है कि हज दरखास्तों के साथ ही वजारत मजहबी उमूर या सऊदी महकमों के जरिए पैसे जमा करवाए जाएं। वो आपको कूपन पर कुर्बानी का वक्त भी बता देंगे। कुर्बानी 10 जुल्हज या 11 जुल्हज को भी होती है। हुज्जाज कराम को चाहिए कि जब तक कुर्बानी का वक्त ना आ जाए उस वक्त तक हल्क या कसर न करवाएं और हालत एहराम ही में रहें। कुर्बानी के बाद हुज्जाज जमरात पर हरम के नजदीक दुकानों से हल्क या कसर करवाकर हालत एहराम से बाहर आ जाते हैं। तवाफ़े ज़ियारत। हुज्जाज कराम मसनून गुस्ल के बाद सादा कपड़े पहन लेते हैं और फिर हज के आखिरी फर्ज तवाफ़े ज़ियारत और सई के लिए हरम रवाना होते हैं। सऊदी हुक्काम दौरान हज मिना में हर किस्म की ट्रैफिक का दाखिला बंद कर देते हैं। ज्यादातर हुज्जाज जमरात से हरम आने जाने के लिए शेड और सुरंगों वाला पैदल रास्ता इख्तियार करते हैं, जो कि 4 किलोमीटर बनता है। मिना से अजीजिया का पैदल रास्ता 2 ता 4 किलोमीटर है। मिना की हुदूद से बाहर टैक्सी किराए पर मिल सकती है, लेकिन आम तौर पर 20 रियाल किराया लेने वाले ड्राइवर उन दिनों 200 रियाल तक तलब करते हैं। मुनासिब होगा कि कुछ हुज्जाज मिलकर टैक्सी करवा लें। हरम से वापसी पर भी टैक्सी आपको मिना के दाखिली रास्तों पर ही उतारेगी। वहां से अपने खेमे तक आपको पैदल आना पड़ेगा। तवाफ़े ज़ियारत के हुज्जाज हज के फराइज से फारिग हो जाते हैं, लेकिन उनका क़याम अभी मिना में ही होगा। 11, 12 और 13 जुल्हज की रमी। 11 जुल्हज को तीनों शैतानों को साथ साथ कंकरियां मारने के बाद हुज्जाज का क़याम मिना में होता है। अलबत्ता 12 जुल्हज को दोबारा तीनों शैतानों को साथ साथ कंकरियां मारने के बाद हुज्जाज या तो मकतब की हिदायत के मुताबिक गुरूब आफ्ताब से कबल मिना से निकलकर अपनी रिहाइशगाह वापस आ जाएं, या फिर अगले दिन यानी 13 जुल्हज को भी रमी करने के बाद मिना से रवाना होंगे। मिना से वापस आने के बाद हज के तमाम मनासिक खत्म हो जाते हैं। तवाफ़े विदा।
मक्का मुकर्रमा छोड़ने और अपने वतन रवाना होने से पहले हुज्जाज अपना आखिरी तवाफ यानी तवाफ़े विदा करते हैं, जो कि वाजिब है। ताहम तवाफ़े विदा हैज़ो निफास वाली ख़वातीन को माफ़ है। हुज्जाज निहायत बोझल दिल के साथ काबे का मंजर आखिरी बार आंखों में महफूज करते और अल्लाह ताला से दोबारा हाजिरी की इल्तिजाओं के साथ काबे से रुखसत हो जाते हैं। ख़वातीनो हज़रात, हज का इतना अजरो सवाब खंदा पेशानी के साथ मुश्किलात का मुकाबला करने की वजह से है। आपकी खिदमत में इन गुजारिशात को पेश करने का मकसद ये है कि आप ज़हनी तौर पर किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए खुद को तैयार रखें। दौरान हज सख्त गर्मी और शदीद मौसमी हालात में आपको 5 से 15 किलोमीटर पैदल सफर करना पड़ सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह हुज्जाज कराम सदियों से ये करते चले आ रहे हैं और अल्लाह ताला आसानियां भी पैदा फरमाता है। अगर हम इन मुश्किलात के लिए पहले से तैयार हों तो हम गैर जरूरी गिले शिकवों और शिकायतों से बच जाते हैं और अपनी तवज्जो इबादत पर मरकूज रख